Hello everyone, welcome back to Geeks for Geeks. So I just hope all of you are doing well. So we are here with the machine learning workshop and we'll be starting from the basics of Python and then we'll be moving on to the advanced ML. So first of all, just let me know if I'm audible and if my screen is visible to all of you. Let me know in the comments if my screen is visible and if I'm audible to all of you. Just put a comment if you can hear me and if my screen is visible to you. Guys, do let me know if my screen is visible and if I'm audible to you. Is my screen visible? Am I audible to you? Okay, great. So in this lecture, we need to start from the basics of Python. So what we'll be doing is we'll be just covering the basic concepts because before starting with machine learning, you should be aware of Python. So let's start with it. Like what we'll be doing today is we'll learn how to print something on the screen. Like if you want to see the output, so for that you have to print something, right? And how we can store something, how we can put an input. So we'll be learning all these basic concepts today. So for that, the platform that we'll be using is Google Colaboratory. So I'm just switching to that. So Google Colaboratory here, like what we'll be doing is, first of all, let's start with how to print something on the screen. But before that, I want to give a basic introduction about Google Colab. So Google Colab is again a platform where you can write the codes, right? Just like you have Jupyter Notebook, you have Spider, all these things, where you can write the Python codes, right? So वैसे ही collaboratory भी होता है, but there's one benefit in collaboratory that multiple users can work on the same file. You and me can work on the same file, we can edit the same file at the same time, right? So let's start with it. So first of all, let's see how to print something on the screen. So if you want to print something on the screen, what you have to do is, so for printing something, you have the print command with the help of which you can print anything on the screen, right? So first you have to write this print. पहले आप क्या करोगे? सबसे पहले आपको print लिखना पड़ेगा. इसके बाद you have to put brackets, and inside brackets, inside quotes, you can write anything that you want to print. ठीक है? तो अगर आपको मान लो, अगर मेरे को print करना है Geeks for Geeks. So for printing this, what I have to do, the very first thing that I need to do is you have to write print here. सबसे पहले यहाँ पे print लिखना है. उसके बाद normal circle bracket, जो आपके flower brackets जो होते हैं वो लगाने हैं. इसके अंदर आपको quotes use करने हैं. Quotes means inverted commas. तो अभी आप पे depend करता है कि आप single inverted comma use कर रहे हैं या फिर double inverted commas. Both will work fine.
ठीक है। अब इसके अंदर आपको जो भी टेक्स्ट इंक्लूड करना है, जो भी आप अपनी स्क्रीन पे प्रिंट करना चाहते हैं, यू कैन पुट दैट इनसाइड दीज कोड्स। तो से फॉर एग्जांपल आई वांट टू राइट geeks for geeks here, so you can write it like this। ठीक है। जैसे ही आप ये करोगे क्या होगा, आपकी स्क्रीन पे मतलब जो आउटपुट जो आएगा उसमें आपको geeks for geeks विजिबल होगा। ठीक है। तो इसका हम कोड लिख के देख लेते हैं। सो फॉर राइटिंग द कोड, दिस इज द कोड सेल हियर। मैं एक बार आपको इसका इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। जो गूगल कोलैबोरेटरी जो आप यूज करोगे, तो ये जो आपका ये जो चीज है, दिस इज योर कोड सेल, जहां पे आप कोड लिख सकते हैं। ठीक है। इसमें एक आपके पास ऑप्शन होता है टेक्स्ट सेल का भी, जिसमें आप कोई भी टेक्स्ट इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे अगर मैंने यहाँ पे किया प्लस टेक्स्ट, तो ये जो यहाँ पे स्पेस आया, दिस इज योर टेक्स्ट सेल। ठीक है। तो इसमें जैसे मैंने लिख दिया प्रिंट स्टेटमेंट। ठीक है। इसका फ़ॉन्ट वगैरह आप इंक्रीज कर सकते हो। यहाँ पे बोल्ड का ऑप्शन है, इटैलिक्स का, आप कुछ भी कर सकते हैं। मतलब इस फ़ॉन्ट के साथ आपको इंक्रीज करना है, डिक्रीज करना है, जो भी चीज़ आपको करनी है आप कर सकते हैं। ठीक है। अब ये जो होगा ये आपका टेक्स्ट सेल होगा। मतलब ये आपने यहाँ पे लिख दिया तो आपको यहाँ पे टेक्स्ट, ये अगर मैंने एक और कोड सेल इंसर्ट किया तो यू कैन सी दिस टेक्स्ट हियर। ठीक है। अब अगर आपको प्रिंट स्टेटमेंट यूज करनी है तो उसके लिए आपको कोड सेल चाहिए होगा। सो दैट कोड सेल इज दिस वन, जहां पे अभी हमारा कर्सर करंटली है। दिस इज योर कोड सेल। ठीक है। इसमें आप कोई भी कोड लिखेंगे। तो जैसे हमें अभी लिखना है, वी नीड टू राइट प्रिंट and then inside brackets, inside quotes, I have written geeks for geeks. I just hope the coding part is visible to all of you. Just let me know आपको codes visible है या नहीं है। Can you guys see the code that I have written here? Guys, let me know if the code is visible to you. This is the code that I have written here. Let me know if this code is visible. Okay, great. So what I have done is I have written print, then inside brackets, inside quotes, I have written geeks for geeks. So if I'll run this code, so this is the run button. ये जो play button जो आपको यहाँ पे दिखेगा, this one is your run button, this one. Fine. So what you have to do is you just need to click on that to run the code. So I clicked on that, and in the output you'll be able to see geeks for geeks. सो इट्स जस्ट रनिंग। जब तक इसके साइड में जो रिवॉल्व हो रहा है सर्कल, तब तक मतलब कोड आपका अभी रनिंग फेज में है। जब ये स्टॉप हो जाएगा उस टाइम पे आपको आउटपुट दिखेगा। फाइन। सो नाउ यू कैन सी दिस इज द आउटपुट हियर, दैट इज geeks for geeks। तो क्योंकि आपने यही चीज प्रिंट की थी तो आपको आउटपुट में ये चीज यहाँ पे मिल गई है, दैट इज geeks for geeks। ठीक है। अब मैंने आपको बोला था कि सिंगल कोट्स भी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, तो आई हैव डन द सेम थिंग। geeks for geeks को अब मैं सिंगल कोट्स में लिख रही हूँ, एंड लेट्स सी द आउटपुट नाउ। तो इट शुड बी geeks for geeks एंड geeks for geeks अगेन। कोई एरर नहीं आएगा, बेशक डबल कोट्स यूज कर लो या फिर सिंगल कोट्स यूज कर लो। फाइन। So this is about the print statement. This is how you can print something on the screen. So what you need to do is you need to print this thing. Just put it in comments what you have to do if you want to print ML workshop on the screen. Put it in comments what we have to do if we want to print ML workshop on the screen. Write the command for that.
Write the command for printing ML workshop on the screen, like in the output. Great. So Vineet has done it right. What we have to do is we just need to write print. Then inside brackets, inside quotes, you have to write ML workshop. Right? This is how we can do this. So I just hope the printing part is clear to you, how we can print something. Now let's see some more concepts. तो प्रिंट आप कर सकते हैं, मतलब जैसे मैंने आपको बोला कि geeks for geeks प्रिंट करना था, आपने डायरेक्टली प्रिंट कर दिया. Now what you have to do is I am just giving you a value that is like I want this value to be at the runtime, right? कि जब मतलब आप कोड को रन करोगे उस टाइम पे वो आपसे वैल्यू मांगे कि मेरे को तो ये वैल्यू मतलब वैल्यू 5 डालनी है, उसके बाद आपको वो चीज प्रिंट करनी है. फाइन. तो उसके लिए सबसे पहले हमें जो कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा दैट इज अबाउट वेरिएबल्स. सो व्हाट आर वेरिएबल्स? वेरिएबल्स आर लाइक कंटेनर्स. ठीक है, वेरिएबल्स आपके कुछ कंटेनर्स होते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने बोल दिया दिस इज अ ग्लास. फाइन. So what this glass can contain? It can contain milk, it can contain water, it can contain anything, right? ये आपका ग्लास है, इसमें आप कुछ भी चीज कंटेन कर सकते हैं. ठीक है, ऐसे ही वेरिएबल्स होते हैं जो आपको कोई भी चीज कंटेन करानी है, लाइक एक कंटेनर की तरह एक्ट करते हैं वेरिएबल्स. कोई भी चीज इफ यू वांट टू पुट समथिंग यू कैन यूज वेरिएबल्स फॉर दैट. तो आप अगर आपको कोई इमेज स्टोर करानी है या फिर आपको कोई से टेक्स्ट स्टोर कराना है या फिर कोई नंबर स्टोर कराना है या फिर कोई डेसिमल नंबर स्टोर कराना है, किसी भी चीज के लिए आप वेरिएबल्स का यूज कर सकते हैं. फाइन. तो वेरिएबल्स अगर मतलब किस टाइप की वैल्यूज हम इसमें स्टोर कर सकते हैं. सो लेट्स से दिस इज अ कंटेनर एंड इट इज स्टोरिंग 5 इनसाइड इट. फाइन. अब ये कोई और वेरिएबल है एंड दिस इज स्टोरिंग से 5.5 इनसाइड इट. This is some other container and this is storing say again geeks for geeks inside it. Fine. तो ये आपके कुछ कंटेनर्स हैं. अब आपको क्या करना पड़ता है, सबसे पहले इन कंटेनर्स का आपको नाम देना पड़ेगा. सो से आई एम सेइंग दैट दिस इज एन इंटीजर नंबर. ठीक है, ये आपका इंटीजर नंबर है तो इसका हम वेरिएबल नेम ले लेते हैं, इंटीजर ही ले लेते हैं, या फिर से INTE ले लिया मैंने. ठीक है, ये आपका डेसिमल नंबर है तो इसको DEC ले लेते हैं. ये जो चीज है दिस विल लर्न व्हाट इज दिस. ठीक है, ये इसके वेरिएबल्स के कॉन्सेप्ट के बाद हम देखेंगे कि ये चीज हम कैसे स्टोर करा सकते हैं. लेकिन अभी के लिए हमने क्या देखा, वी हैड सीन इंटीजर एंड द डेसिमल नंबर. तो आप बोल रहे हो कि आपके पास एक कंटेनर है, उस कंटेनर का नाम क्या है, INTE, या फिर इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इनको A भी ले लेते हैं अभी के लिए. ठीक है, तो ये मैंने ले लिया A और ये ले लिया B. तो ये आपका जो कंटेनर है इसका नाम है A. मीन्स ये क्या है, आपका कंटेनर है मतलब वेरिएबल है. ठीक है, अब इस वेरिएबल का नाम क्या है, A. तो आपने क्या बोला कि मैंने एक वेरिएबल बनाया जिसका नाम है A, जिसके अंदर में क्या वैल्यू स्टोर कर रही हूँ, आई एम स्टोरिंग द वैल्यू 5 इनसाइड इट. So what you have to do for storing the value, you just need to put an equals here, and after the equals you need to write the value. So if I need to insert 5 inside it, so you have to write 5 here. ठीक है, आपने क्या किया, सबसे पहले अपने वेरिएबल का नाम लिख दिया. ठीक है, दिस इज योर वेरिएबल नेम. इक्वल्स, ये इक्वल्स आपको हमेशा लगाना पड़ेगा अगर आपको कोई भी वैल्यू स्टोर करानी है तो. इक्वल्स के बाद आपको जो भी वैल्यू आपको स्टोर करानी है, सो आई हैव रिटन वैल्यू हियर. ठीक है, तो अगर मेरे को B में 5.5 स्टोर कराना है तो उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू गिव द वेरिएबल नेम. वेरिएबल नेम यहाँ पे क्या है, वेरिएबल नेम इज B, राइट. सो यू हैव टू राइट B हियर, देन द इक्वल साइन अगेन, और वैल्यू क्या स्टोर है B के अंदर, 5.5. सो यू हैव टू राइट 5.5 हियर, है ना. ये चीज हमें करनी पड़ेगी. सो फर्स्ट यू हैव टू राइट द वेरिएबल नेम, देन इक्वल्स एंड द वैल्यू दैट यू वांट टू स्टोर इनसाइड दैट वेरिएबल. अब ऐसा नहीं है कि ये जो वेरिएबल है ये सिर्फ 5 स्टोर मतलब इंटीजर या फिर डेसिमल वैल्यू ही स्टोर करा सकते हैं. इवन अगर आपको कोई इमेज स्टोर करानी है तो वो वेरिएबल के अंदर आप स्टोर कर सकते हैं, बट यू विल बी लर्निंग दीज थिंग्स लेटर ऑन. ठीक है, सो दिस वाज द सिंटेक्स. वी हैव टू पुट द वेरिएबल नेम इक्वल्स एंड देन द वैल्यू. फाइन. तो अब इसके लिए कोड लिख लेते हैं. So let's insert a code cell here, and I'm saying that A is storing 5 inside it.
ठीक है, ये मैंने एक वेरिएबल बनाया a जिसके अंदर वैल्यू 5 स्टोर्ड है। अब आपको क्या करना है, अगर मैं इस कोड को रन करूंगी तो रन करने से क्या होगा, a में 5 जाके स्टोर हो जाएगा। अब मेरे को वही चीज प्रिंट करानी है कि जो 5 मैंने स्टोर किया है दैट 5 शुड बी एक्चुअली प्रिंटेड ऑल्सो ऑन द स्क्रीन। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू अगेन यूज अ प्रिंट स्टेटमेंट, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि अगर कुछ भी चीज प्रिंट करनी है उसके लिए प्रिंट कमांड तो यूज करनी ही करनी पड़ेगी, प्रिंट फंक्शन को आप यूज करोगे ही करोगे। ठीक है, प्रिंट और उसके बाद ब्रैकेट्स। अब आपको यहाँ पे 5 नहीं प्रिंट कराना, आपको यहाँ पे क्या प्रिंट कराना है, ए की वैल्यू, है ना। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना पड़ेगा, यू हैव टू राइट ए इनसाइड इट। और जब आप कोई भी वेरिएबल को प्रिंट कराओगे तो आपको कोट्स यूज नहीं करने। ठीक है, आपको कोट्स यहाँ पे यूज नहीं करने इफ यू आर प्रिंटिंग द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल। तो आप क्या लिखोगे, प्रिंट देन ब्रैकेट्स ए डायरेक्टली। तो होगा क्या, अगर मैंने यहाँ पे कोट्स यूज कर दिए, से आई एम सेइंग प्रिंट and then inside brackets inside quotes I have written a, तो इससे क्या होगा, ए की वैल्यू प्रिंट होने की बजाय ए ही प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि जैसे मैंने बताया कोट्स में आपने कुछ भी लिख दिया प्रिंट स्टेटमेंट में वो चीज डायरेक्टली यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी, है ना। अगर आपको वैल्यू अगर प्रिंट करानी है, सो फॉर दैट व्हाट यू हैव टू डू इज यू जस्ट नीड टू पुट दिस ए विदाउट कोट्स। तो इसका क्या मतलब हो जाएगा, अगर आपने डायरेक्टली यहाँ पे लिख दिया, इफ यू हैव रिटन दिस थिंग प्रिंट देन ए, इसका मतलब ये है कि जो आपने प्रिंट स्टेटमेंट में जो भी वेरिएबल नेम डाला है उस वेरिएबल पे जाओ, दैट इज ए दिस वन, राइट। इसके अंदर जो वैल्यू स्टोर है उसको प्रिंट करना है। ठीक है, अगर कोट्स में लिखा तो डायरेक्टली प्रिंट कर देगा जो भी आपने कोट्स में डाला, अगर वेरिएबल है तो उसके अराउंड कोट्स नहीं लगाने। ठीक है, तो हमने क्या किया, वी हैव रिटन a equals 5 and then in the next line we are printing a. So let's run the code and let's see what's the output here. So in the output you can see 5, है ना। a की वैल्यू 5 थी, a को प्रिंट किया तो 5 यहाँ पे प्रिंट हो गया। Now the activity for you is you have to create a variable c. You need to store the value 32 inside it and then you need to print this value on the screen. So write the code for this. Great, yeah. Vineet has again answered it correctly. So what we have to do is we just need to write geeks for c equals 32 and then we have to print c. Wait, let me open the GFG ID so that we can write the stuff there. Okay, yeah, it is fine now. Fine. So what we have to do is we have to do it like this. We have to take a variable c. Inside this we have to store 32 and then in the next line we just need to print c. Right? This is what we have to do. So this was about variables कि आपको कोई भी variable आप कैसे variable create कर सकते हैं, कैसे उसके अंदर value store कर सकते हैं and how you can print the value of that variable. Now let's discuss about data types. So what are these data types now? Okay. So data types is like जैसे हम वेरिएबल में कोई भी वैल्यू स्टोर करा रहे हैं, राइट, तो अब वो वैल्यू किस टाइप की होगी। एक तो चीज हो सकती है जो हमने देखा था कि वैल्यू इंटीजर है, या फिर आपकी वैल्यू डेसिमल हो सकती है, या फिर जैसे हमने कोई कैरेक्टर ले लिया या फिर कोई वर्ड ले लिया। मतलब अगर हमें इस टाइप की कोई भी वैल्यूज अगर हमें स्टोर करानी है तो वो हम कैसे कराएंगे, उसके लिए हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है डेटा टाइप्स का। Yeah. So what we have to do is, say you want to store an integer value inside the variable, right? तो आपको क्या करना है, ये हमने अभी देख लिया कि आपका कोई वेरिएबल है a, इसमें आपने 5 स्टोर कर दिया तो इंटीजर तो हो जाएगा। ठीक है, डेसिमल अगर स्टोर कर रहा है तो उसके लिए क्या करोगे, b कोई वेरिएबल ले लिया, इसमें 5.5 स्टोर कर दिया। ठीक है,
अब अगर कोई कैरेक्टर लेना है तो उससे आपने ये ले लिया, सी इसके अंदर स्टोर कर दिया और इसका नाम ले लेते हैं डी। ठीक है, ये डी वेरिएबल है जिसके अंदर आप सी स्टोर कर रहे हैं। अगर आपको कोई वर्ड स्टोर करना है तो जैसे मैंने यहाँ पे स्टोर कर दिया एबीसी, ठीक है, और इसके लिए वेरिएबल ले लिया ई। तो अब इनके लिए भी आपके पास डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स का कॉन्सेप्ट यहाँ पे होता है। तो अगर आप किसी वेरिएबल के अंदर इंटीजर वैल्यू को स्टोर कर रहे हैं तो उसके लिए व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू लाइक द डेटा टाइप फॉर दैट विल बी इंट। इंटीजर को शॉर्ट में इंट, ठीक है। इंट डेटा टाइप क्या करता है, अगर आपने किसी भी वेरिएबल को इंटीजर डेटा टाइप का ले लिया, इंट डेटा टाइप का ले लिया, तो उसके अंदर आप सिर्फ इंटीजर वैल्यू ही स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, अब मैंने बोला कि मेरे पास कोई वेरिएबल है बी जो कि अपने अंदर एक डेसिमल वैल्यू स्टोर कर रहा है, तो उसके लिए डेटा टाइप जो डिफाइंड है वो है फ्लोट। ठीक है, इट इज FLOAT, दिस इज द फ्लोट डेटा टाइप। अब ये है आपका कोई कैरेक्टर, या फिर अगर आपको कोई भी मतलब मान लो आप कोई वर्ड स्टोर करा रहे हैं अभी के लिए, ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपके पास एक डेटा टाइप होता है दैट इज स्ट्रिंग। ये आपका स्ट्रिंग होता है और आप इसको यूज कैसे करते हैं, इट इज रिटन लाइक STR। ठीक है, ऐसे हम इसको यूज करते हैं। तो डेटा टाइप्स मतलब वही है कि जो भी आप डेटा जो भी आप इंसर्ट कर रहे हैं उसका क्या टाइप होगा, राइट। लाइक इफ इट विल बी इंटीजर और फ्लोट और स्ट्रिंग। तो ये तीन तो हमने देख लिया, इसके अलावा एक और भी रिस्ट्रिक्शन यहाँ पे होती है, दैट इज फॉर ट्रू एंड फॉल्स। सो इफ यू नीड टू स्टोर ट्रू इनसाइड योर वेरिएबल, ठीक है, तो अब यहाँ पे आप बोलोगे कि ट्रू तो एक वर्ड है तो इसके लिए STR आप यूज कर लोगे और स्टोर कर लोगे, है ना। लेकिन ऐसा नहीं होता, ट्रू और फॉल्स यहाँ पे एक्सेप्शंस होते हैं। इसके लिए आपके पास एक डेटा टाइप होता है दैट इज बूल। ठीक है, दिस इज द डेटा टाइप और आपको ये यूज करना पड़ता है फॉर स्टोरिंग द ट्रू और फॉल्स वैल्यू इनसाइड अ वेरिएबल। तो जो हम गूगल कोलैब जो यूज कर रहे हैं इसमें एक्चुअली आपको मेंशन नहीं करना पड़ता। मतलब एक तो आपने जैसे बोल दिया कि मैं एक इंटीजर वैल्यू स्टोर करना चाहती हूँ वेरिएबल ए के अंदर एंड आई वांट टू स्टोर 5 इनसाइड इट। ठीक है, यहाँ पे आपने मेंशन कर दिया अलग से कि ए जो होगा वो इंटीजर टाइप का होगा, है ना। लेकिन गूगल कोलैब में आपको एक्चुअली डेटा टाइप्स यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती। यू कैन डायरेक्टली राइट A = 5, B = 5.5, देन C = से ABC। आपको यहाँ पे अलग से फ्लोट या फिर STR ये सारी चीजें मेंशन करने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, आप डायरेक्टली मतलब सिर्फ इतना पार्ट लिख सकते हो तो ये अंडरस्टूड हो जाता है कि अगर A के अंदर 5 स्टोर है तो 5 क्या है, इंटीजर वैल्यू। तो मतलब A किस टाइप का हो गया, इंटीजर टाइप का हो गया। B के अंदर 5.5 स्टोर है मतलब 5.5 इज ए डेसिमल वैल्यू, तो B किस टाइप का हो गया, फ्लोट टाइप का हो गया। C के अंदर ABC स्टोर है मतलब ये स्ट्रिंग टाइप का हो गया। D में मैंने स्टोर कर दिया ट्रू। जब ट्रू और फॉल्स यूज करोगे तो T और F जो है कैपिटल्स में होंगे, ये चीज याद रखना। इनके अराउंड कोट्स नहीं लिखोगे और, ठीक है, इनके अराउंड कोई कोट्स नहीं आएंगे। सिर्फ जब आप कोई वर्ड अगर लिखोगे और अगर आपने उसमें STR अगर डाल दिया कि मतलब ये स्ट्रिंग टाइप का होगा, मतलब आपको अगर वो स्ट्रिंग टाइप का चाहिए तो उसके अराउंड आपको कोट्स यूज करने पड़ेंगे। चाहे आप कैरेक्टर ले लो, मतलब चाहे आप एक वर्ड ले लो या फिर एक कैरेक्टर ले लो। ठीक है, तो ये आपके डिफरेंट डेटा टाइप्स होते हैं, मतलब ये आपको इनकी नॉलेज एक्चुअली रिक्वायर्ड होती है। पर जैसा मैंने बताया गूगल कोलैब में आपको ये सारी चीजें यूज करने की जरूरत नहीं है। आपको अलग से नहीं बताना कि इंटीजर टाइप का है या फिर ये फ्लोट टाइप का है, ये स्ट्रिंग टाइप का है या फिर ये बूल टाइप का है। सीधा अपना वेरिएबल बनाओ, इक्वल्स जो भी वैल्यू स्टोर करनी है यू कैन डायरेक्टली स्टोर दैट वैल्यू। ठीक है, तो वापस अपने कोड पे आ जाते हैं। So what we have to do here is, again let's insert a code segment. So I'm saying that let's create a variable A equals, इंटीजर हमने पहले स्टोर कर लिया था, इसको B ले लेते हैं इस बार। कोट्स में क्या लिखना है आपको, यू हैव टू राइट लेट्स राइट ABC अगेन। ठीक है, अब प्रिंट कर लो B को, प्रिंट B। ठीक है, अगर बूल वैल्यू अगर स्टोर करनी है तो मैंने ले लिया एक वेरिएबल C और यहाँ पे मैंने ट्रू स्टोर करा लिया एंड इन द नेक्स्ट लाइन यू हैव टू प्रिंट C। तो आप ये चीज मतलब ऐसे डायरेक्टली कर सकते हैं एंड yeah, you can see the output here. It is ABC because in the second line you have printed B and the value of B is ABC, and in the fourth line you have printed C and the value for C is true. तो यहाँ पे bool, integer, float, string ये सारी चीजें अलग से mention करने की जरूरत नहीं है आपको collaboratory में. So I just hope everything till here is clear. Now let's move on to the next thing. So till now we have discussed variables, data types and print statement. Now let's say I want to take input from the user.
जो हमने डिस्कस किया था कि मेरे को रन टाइम पे ही यूजर से इनपुट लेना है कि जैसे मान लो मैंने बोला यूजर को एंटर अ नंबर, और यहाँ पे ऑप्शन आ जाए कि जैसे आप कोड को रन करो ना, आपको ये वाली चीज दिखे, जैसे आपने यहाँ पे 5 डाला तो वो 5 प्रिंट हो जाए। ठीक है, ये चीज आपको आउटपुट में चाहिए। अब इनपुट में मतलब आप सीधा नहीं दे रहे कि ए की वैल्यू 5 है, आप क्या बोल रहे हो कि यूजर खुद बता देगा कि उसको ए की क्या वैल्यू चाहिए। किसी ए यूजर को ए की वैल्यू 5 चाहिए होगी, बी को 2 चाहिए होगी, सी को 3 चाहिए होगी, तो वो यूजर खुद से हैंडल कर लेगा। ठीक है, तो अगर आपको ये चीज करनी है तो इसके लिए वी हैव अ इनपुट फंक्शन इन पाइथन। दिस इज योर इनपुट फंक्शन। ये फंक्शन क्या करता है कि यूजर को लाइक इट लेट्स द यूजर टू टेक द इनपुट ऑन इट्स ओन। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट इनपुट हियर। ठीक है, देन पुट ब्रैकेट्स, देन इनसाइड कोट्स से आई वांट द यूजर टू एंटर हिज नेम। ठीक है, आई वांट द यूजर टू एंटर द नेम, सो आई विल राइट इनसाइड हियर एंटर योर नेम। मैंने ये चीज यहाँ पे लिख दी। ठीक है, तो वो जो चीज मैंने आपको बताई थी एंटर अ नंबर, तो वो जो इंस्ट्रक्शन जो आपको देनी है यूजर को कि उसको क्या चीज एंटर करनी है, वो आप ऐसे लिखते हो इनपुट के बाद, जैसे आप प्रिंट में कर रहे थे ना, सेम चीज यहाँ पे होगी। इनपुट के बाद आपने लिख दिया कि एंटर योर नेम इनसाइड कोट्स, तो आउटपुट में क्या होगा, आउटपुट में कुछ ऐसा आ जाएगा, एंटर योर नेम, और उसके बाद आपके पास ये स्पेस होगा जहां पे आप अपना नाम एंटर कर सकते हैं। ठीक है, तो एक बार इसको भी एग्जीक्यूट करके देखते हैं। Yeah, we can find the type of the data using the type function. We'll come to that also. So I'm just inserting a code segment. So what I'm doing here is, let's say I'm taking, okay, let's use the input function. तो इनपुट में जाके कोड्स में जाके मैंने लिख दिया एंटर योर नेम। ठीक है, सिर्फ यही किया है, इनपुट एंटर योर नेम, एंड देन वी नीड टू रन द कोड। So here it is saying, like in the output, if you see, you have this thing here, enter your name, और उसके बाद आपके पास स्पेस है जहां पे आप अपना नाम लिख सकते हैं। So I'll just take the cursor over here and I'll write my name here, and after that I'll press enter. ठीक है, जैसे ही आपने एंटर प्रेस किया तो इसने आपको यहाँ पे हिमांशी अलग से दिखा दिया कि ये जो चीज है ये आपने प्रिंट कर, मतलब ये जो चीज है ये आपने इनपुट दी थी, है ना। अब अगर आपको कोई नंबर से, फॉर एग्जांपल अगर कोई नंबर इनपुट कराए तो विल राइट दिस एंटर अ नंबर, एंड अगेन आई रन द कोड। सो इट इज सेइंग एंटर अ नंबर। ठीक है, यूजर को इंस्ट्रक्शन मिली कि उसको एक नंबर एंटर करना है, तो उसे मैंने 5 डाल दिया इसमें, एंड देन आई प्रेस्ड एंटर, एंड यू विल बी एबल टू सी 5 हियर। ठीक है, अब ये चीज हो गई कि यूजर ने एंटर कराया, सेम चीज प्रिंट हो गई। ठीक है, अब जो यूजर का जो इनपुट है वो मेरे को कहीं पे यूज करना है, तो अगर यूज करना है तो वो कहीं पे स्टोर तो होना चाहिए ना। अगर आप कोई भी चीज बाद में, मतलब यहाँ तो आपने ये चीज कर दी, लेकिन अब ये 5 स्टोर कहाँ पे है, कहीं पे भी स्टोर नहीं है ये तो, है ना। ये 5 कहीं पे स्टोर तो होना चाहिए ना। स्टोर करने के लिए हमें क्या चाहिए, स्टोर करने के लिए हमें वेरिएबल्स चाहिए। तो हम क्या करेंगे, अगर आपको ये चीज स्टोर करनी है, तो जैसे मैंने बताया था वेरिएबल्स में आप कुछ भी चीज स्टोर कर सकते हैं। सो व्हाट यू विल डू इज यू विल जस्ट राइट द वेरिएबल नेम, से आई हैव रिटन ए equals, and then you will write the same thing, input, and then inside brackets, inside quotes, you will write enter a number. ठीक है, अब इससे क्या हुआ कि आप जो भी नंबर एंटर करोगे वो जाके ए में स्टोर हो जाएगा। अब अगर आपको प्रिंट करना है ये, मतलब एक तो आप इसको कहीं भी यूज कर सकते हैं, है ना, कि आपने ए कहीं पे भी यूज कर लिया। दूसरी चीज क्या होती है कि आप इसको यूज मत करो, आप क्या कर लो, इसको डायरेक्टली प्रिंट कर दो, है ना। सो वी कैन प्रिंट इट लाइक दिस। वेरिएबल्स तो हमें पता है ना कैसे प्रिंट करने हैं, तो इनपुट को हमने एक वेरिएबल में स्टोर कर लिया और उसके बाद हमने उसको प्रिंट कर दिया। तो बाकी कोड में अगर आपको कहीं पे भी ए की रिक्वायरमेंट है तो आप डायरेक्टली ए को यूज कर सकते हो ना, क्योंकि ए में आपका 5 ऑलरेडी स्टोर्ड है। सो विल जस्ट स्टोर दिस इनपुट इनसाइड अ वेरिएबल a equals and this input, and then in the next line will print a। ठीक है, तो इससे क्या होगा, जब मैं इस कोड को रन करूंगी, सो इट विल आस्क मी टू एंटर अ नंबर,
ठीक है, इट इज आस्किंग मी टू एंटर अ नंबर हियर, सो से आई हैव रिटन 6 हियर। तो अब क्या होगा, जैसे ही आपने यहाँ पे 6 डाला, जैसे ही आप एंटर प्रेस करोगे ना, ये 6 जाके ए में स्टोर हो जाएगा और उसके बाद यू कैन डायरेक्टली प्रिंट ए। तो जब आप ए को प्रिंट करोगे तो क्या होगा, यहाँ पे आपको 6 दिख जाएगा। ठीक है, सो विल जस्ट रन द विल प्रेस एंटर आफ्टर दिस एंड इन द आउटपुट यू कैन सी 6। ठीक है, सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। मतलब अगर आपको इनपुट लेना है तो फॉर दैट यू हैव टू यूज इनपुट फंक्शन, लेकिन अगर आप डायरेक्टली यूज कर दोगे तो वो इनपुट कहीं पे भी स्टोर नहीं हुआ। अगर आपको स्टोर कराना है वो कहीं पे भी, तो अगेन यू हैव टू यूज अ कॉन्सेप्ट ऑफ वेरिएबल्स देयर। ठीक है, अब ये जो इनपुट था ये जाके ए में स्टोर हुआ, ए को आपने प्रिंट कर दिया और आपको आउटपुट में जो भी ए की वैल्यू थी वो दिख जाएगी। अब ये था कि 6 था, ठीक है, इनपुट जो हमने लिया। अब अगली बार जब पूछेगा एंटर अ नंबर, तो से मैंने कोई और नंबर यहाँ पे डाल दिया। The code is still running. Okay, so it is again saying enter a number. ठीक है, तब 6 था, अब मैंने से यहाँ पे 101 डाल दिया। Then I again press enter and in the output you can see 101 here. ठीक है, so this is how it works. Like आपका जो वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट है वो भी यहाँ पे यूज हो गया, जो इनपुट फंक्शन जो हमने यूज किया था वो भी यहाँ पे यूज हो गया और प्रिंट भी यूज हो गया। ठीक है, अब हम एक और चीज देख लेते हैं, द टाइप फंक्शन। ठीक है, तो डेटा टाइप्स जैसे हमने डिस्कस किए थे, तो डेटा टाइप्स मतलब अगर आपके पास एक टाइप फंक्शन होता है जिससे आप चेक कर सकते हो कि जो भी आपने वेरिएबल लिया है उसका डेटा टाइप क्या है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप अलग से कुछ मेंशन नहीं कर रहे ना, आप तो डायरेक्टली मतलब ये चीज डाल रहे हो कि a इक्वल्स 5, तो वो अंडरस्टूड हो रही है वो चीज कि a में क्योंकि 5 स्टोर है, 5 एक इंटीजर वैल्यू है तो डेटा टाइप इसका इंट होगा, है ना। b में 5.5 स्टोर है तो डेसिमल वैल्यू है तो इसका डेटा टाइप फ्लोट होगा। तो ये चीज अंडरस्टूड है, लेकिन आपको मतलब मान लो कोई और यूजर है जिसको नहीं पता कि डेटा टाइप्स क्या है, इसका क्या डेटा टाइप है, किस टाइप की वैल्यू है, तो वो क्या कर सकता है, यूजिंग द टाइप फंक्शन ही कैन चेक द डेटा टाइप। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ क्या करना है, यू हैव टू राइट टाइप, देन इनसाइड ब्रैकेट्स जस्ट राइट वेरिएबल नेम हियर। फाइन, तो अब जैसे मैंने बोला कि a इक्वल्स, सो दिस इज वेरिएबल a इक्वल्स 5। ठीक है, अब आपने एक वेरिएबल बनाया a जिसमें 5 वैल्यू स्टोर है, आपको पता है ये इंटीजर है, पर मैं आपको बोल रही हूँ कि आप ये चीज प्रूव करो कि ये इंटीजर ही है। सो फॉर दैट व्हाट यू हैव टू डू, यू नीड टू यूज अ टाइप फंक्शन। टाइप में जाके a डाल दो, जैसे ये चीज करोगे ना प्रिंट कर देगा आपके लिए जो भी इसका टाइप होगा, दैट इज इंट, राइट। तो ये चीज भी हम करके देख लेते हैं। आई हैव टेकन अ वेरिएबल a हियर, a में मैंने 5 स्टोर कर दिया। ठीक है, now in the next line I have done type and then inside brackets I have written a। ठीक है, तो जब इस कोड को आप रन करोगे, so in the output you can see int। fine, a was storing 5 inside it। नेक्स्ट लाइन में आके a का टाइप चेक कर रहे हो, तो किस टाइप की वैल्यू स्टोर है a के अंदर, इंटीजर टाइप की, सो यू कैन सी int हियर। अब ये सभी के लिए एक बार करके देख लेते हैं। So now inside B, I'm storing a decimal value that is say 5.5, and then I'm checking the type of B. And let's run the code again. So it should be float. Decimal के लिए हमारे पास कौन सा डेटा टाइप है, float, right? तो इसके बाद string include करके देख लेते हैं। I have taken a variable C. String मतलब कुछ भी जो आप कोट्स के अंदर जो आपने डाल दिया। ठीक है, स्ट्रिंग क्या होती है, कोई भी चीज जो कि कोट्स के अंदर है, इधर इनसाइड सिंगल इन्वर्टेड कोमास और इनसाइड डबल इन्वर्टेड कोमास। तो अगर कोई भी चीज आप इसके अंदर डालो, बेशक आपने 1 भी डाल दिया ना, तो वो भी आपकी स्ट्रिंग कंसिडर होगी, वो इंटीजर कंसिडर नहीं होगा। दिस वन एंड दिस वन, दे आर डिफरेंट। दिस इज योर इंटीजर वन एंड दिस इज योर स्ट्रिंग वन। ठीक है, दिस इज योर स्ट्रिंग। सिमिलरली this 5 and this 5.5 and this 5.5 are different. This is float and this is string. तो मतलब अगर आपने कोई भी चीज है, अगर आपने वो कोट्स के अंदर डाल दी, so that will actually convert inside a string। ठीक है, तो अब अगर मेरे को यहाँ पे कोई स्ट्रिंग वैल्यू लेनी है तो आपको सबसे पहले तो कोट्स एंटर करने पड़ेंगे। डबल सिंगल यहाँ पे डिपेंड करता है, मैंने डबल ले लिया
and I have written geeks for geeks inside it. ठीक है, और इसके बाद let's check the type of C. Then I'm running the code and you can see the output here, it is str. ठीक है, ये आपका geeks for geeks string के अंदर था, कोड्स के अंदर था. जब आपने टाइप चेक किया तो you can see str here. अब मैं क्या कर रही हूँ इसी के अंदर, चलो नया कोड सेगमेंट इंसर्ट कर लेते हैं. आई हैव टेकन d इक्वल्स, इनसाइड कोट्स आई हैव रिटन 1. कोट्स में मैंने एक इंटीजर नंबर लिखा है, इसके बाद मैं इसका टाइप चेक कर रही हूँ. आई एम चेकिंग द टाइप ऑफ d, सो इट शुड बी स्ट्रिंग अगेन, क्योंकि इंटीजर नहीं है. इंटीजर कब होता, अगर 1 के अराउंड कोई भी आप कोट्स नहीं लगाते उस टाइम पे वो इंटीजर होता, लेकिन क्योंकि यू हैव यूज्ड द कोट्स अराउंड इट मींस इट हैज बीन कन्वर्टेड इनसाइड अ स्ट्रिंग. ठीक है, तो इन द आउटपुट यू कैन सी द टाइप ऑफ d इज str here. ठीक है, अब हम यहाँ पे bool भी इंक्लूड करके देख लेते हैं, दैट इज फॉर स्टोरिंग द ट्रू एंड फॉल्स वैल्यू. सो आई एम इंसर्टिंग अ न्यू कोड सेगमेंट. So I'm taking the variable as e equals and then I have written true. ठीक है, अगर ट्रू के अराउंड कोट्स लगा दे तो फिर से स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा, बट वी वांट द बूलियन हियर, सो कोट्स नहीं लगाना उसके अराउंड. ठीक है, अब जब टाइप चेक करोगे तो क्या होगा, इससे टाइप ऑफ ई वुड बी बूल. ठीक है, दिस इज आउटपुट हियर. ऐसे ही अगर आप फॉल्स वैल्यू स्टोर करा रहे हो, मान लो आपने एफ ले लिया कोई वेरिएबल एंड इनसाइड दिस यू आर स्टोरिंग द वैल्यू फॉल्स एंड देन यू आर चेकिंग द टाइप ऑफ एफ, सो इट वुड बी बूल अगेन. ठीक है, तो ये हमने जितने भी डेटा टाइप्स मतलब हमें इस पर्टिकुलर सेशन में कवर करने थे वो हमने कर लिए. ठीक है, कौन से किए हैं, इंटीजर इंट फॉर स्टोरिंग द इंटीजर वैल्यू, फ्लोट फॉर स्टोरिंग द डेसिमल वैल्यू, देन str for storing the string value, that is anything inside quotes, then bool for storing the true or false value. This is for true or false, this is for quotes, inside quotes, and this is your decimal value and this is your integer value. So I just hope everything till here is clear. ठीक है, अब हम क्या करें, यहाँ पे मैंने क्या किया था, डायरेक्टली एक वेरिएबल बनाया, उस वेरिएबल में मैंने सीधी वैल्यू स्टोर करा दी. नाउ से आई वांट टू यूज द इनपुट फंक्शन हियर आल्सो, कि मैं बोल रही हूँ कि मेरे को इनपुट में चाहिए एक बूल वैल्यू. ठीक है, या फिर इनपुट में ले लेते हैं इंटीजर अभी के लिए. सो से आई हैव टेकन द वेरिएबल नेम एज नेम and inside input I'm taking enter a number. ठीक है, and then you are checking the type of name and then I'm running the code. तो name आपका जो है एक वेरिएबल है जिसके अंदर आपको एक नंबर स्टोर कराना है, तो उसे आई हैव टेकन द नंबर एज 5. ठीक है, तो जैसे ही आप ये करोगे ना, क्या होगा, ये जो 5 है ये जाके स्टोर हो जाएगा नेम के अंदर, है ना. नेम नाउ कंटेन्स 5 इनसाइड इट. नाउ वी आर चेकिंग द टाइप ऑफ नेम. तो टाइप क्या होना चाहिए इसका, इंटीजर होना चाहिए ना टाइप. तो लेट्स सी द आउटपुट हियर. आई एम जस्ट प्रेसिंग एंटर एंड लेट्स सी कि इंटीजर होता है या नहीं होता. सो इट इज सेइंग str. इसने बोला कि आपने एक नेम वेरिएबल लिया था जिसमें आपने एक नंबर स्टोर कराया 5, बट दैट नंबर इज str, इट इज नॉट इंटीजर. तो ये चीज कैसे हुई, चलो एक और चीज के लिए देख लेते हैं, ये सेम चीज हम बूल के लिए देख लेते हैं. आई एम सेइंग नेम, लेट्स टेक इट एज name2 equals input, then inside brackets, inside quotes I'm saying enter a boolean, and then in the next I am checking the type of this name2. ठीक है, तो I'm again running the code. मैंने इसमें डाल दिया true and then I pressed enter and again it is a string. ठीक है, तो ये ऐसा क्यों हो रहा है, जब आप इनपुट ले रहे हो तो ये क्यों चेंज हो रहा है. सो ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, जब भी आप इनपुट ले रहे हैं यूजर से, तो बेशक आपने इनपुट में एक इंटीजर स्टोर कराया या फिर आपने कोई फ्लोट वैल्यू स्टोर कराई या फिर कोई str स्टोर कराया या फिर कोई भी बूलियन स्टोर कराया, ये एक्चुअली कैसे स्टोर होंगे आपके, इन द फॉर्म ऑफ अ स्ट्रिंग. जब भी आप इनपुट लोगे, ओनली इन दैट केस.
अगर सीधा वेरिएबल में ही स्टोर करा दे तो जो स्टोर कराया वही दिखा देगा टाइप, लेकिन अगर आपने इनपुट फंक्शन यूज करके ये चीजें स्टोर कराई है तो उस केस में एक डिफरेंस आएगा, दैट इज चाहे आप इंटीजर स्टोर करा लो या फ्लोट, स्ट्रिंग, बूलियन, कुछ भी स्टोर करा लो, दैट विल बी स्टोर्ड एज अ स्ट्रिंग। ठीक है, लेकिन अब यूजर को तो वो चाहिए था इंटीजर 5, लेकिन ये बोल रहा है कि ये तो स्ट्रिंग 5 है ना, तो अब वो कन्वर्ट तो करना पड़ेगा इंटीजर में, क्योंकि आप स्ट्रिंग 5 तो नहीं यूज कर सकते ना, जब यूजर को चाहिए इंटीजर 5 तो हाउ कैन यू यूज अ स्ट्रिंग दैट? So for that we have a concept of data type conversion. Exactly, typecasting. So for this we have this thing, data type conversion. अब डेटा टाइप कन्वर्शन में होता क्या है कि जैसे मान लो मैंने एक वेरिएबल ले लिया a और उसमें मैंने इनपुट ले लिया एंटर अ नंबर। ठीक है, तो जब ये रन किया आपने तो एक मतलब इसने पूछा कि आपको ए में क्या स्टोर करना है, तो आपने मान लो 5 स्टोर करा दिया, लेकिन आपको पता है कि ये 5 कैसे 5 है, स्ट्रिंग 5 है, इंटीजर 5 नहीं है, क्योंकि ये चीज हमने देख ली खुद रन करके, है ना। अब आपको ये जो स्ट्रिंग 5 है इसको इंटीजर 5 में कन्वर्ट करना है, तो इसके लिए आप क्या करोगे? इट्स वेरी सिंपल, ट्राई टू गो विद द सिंटेक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट द वेरिएबल नेम, जिस वेरिएबल को आपको कन्वर्ट करना है, तो कौन से को करना है? ए को करना है, सो राइट ए इक्वल्स। अब ये स्ट्रिंग 5 था, इसको किस में कन्वर्ट करना है? इंटीजर 5 में। उसके लिए डेटा टाइप क्या होता है? इंट होता है, तो जस्ट राइट इंट हियर, देन इनसाइड ब्रैकेट्स फिर से उसी वेरिएबल का नाम लिख दो, दैट इज ए। कुछ नहीं करना, सबसे पहले जिस भी वेरिएबल को कन्वर्ट करना है उस वेरिएबल का नाम लिखो, इक्वल्स, देन राइट द डेटा टाइप कि आपको किस डेटा टाइप में कन्वर्ट करना है। तो हमें स्ट्रिंग को किस में कन्वर्ट करना था? इंटीजर में, सो आई हैव रिटन इंट हियर, देन इनसाइड ब्रैकेट्स अगेन राइट ए, जो कि आपका वेरिएबल नेम था। सेम चीज यहाँ पे, ये दोनों चीजें आपकी सेम होगी, ये चीज आपकी होगी जो आपको कन्वर्ट करना है, वो चीज यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, सो लेट्स ट्राई टू कन्वर्ट दिस। तो मैंने बोला कि एक वेरिएबल है ए जिसमें यू आर स्टोरिंग, यू आर टेकिंग द इनपुट हियर, एंटर अ नंबर, देन इट्स कन्वर्टेड इनसाइड इंटीजर। ठीक है, तो अभी तक आपका जो ए का जो डेटा टाइप था अभी तक वो था आपका स्ट्रिंग str, है ना। अब आपने उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया, तो अब इसका टाइप प्रिंट करके देखते हैं। अब टाइप क्या हो जाना चाहिए? इंटीजर हो जाना चाहिए, है ना। तो सबसे पहले एंटर ए नंबर, 5 एंटर किया। ठीक है, फिर ए में जाके 5 स्टोर हो गया, यहां से ये 5 जाके ए में स्टोर हो गया, देन ए इक्वल्स इंट ए से क्या हुआ कि जो आपका ए था, क्योंकि वो स्ट्रिंग था, इंटीजर में कन्वर्ट हो गया। देन इन द थर्ड लाइन वी आर चेकिंग द टाइप ऑफ ए, सो इट शुड बी कन्वर्टेड इनसाइड अ इंटीजर, क्योंकि आपने स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया। सो आई प्रेस्ड एंटर आफ्टर दैट, एंड इन द आउटपुट नाउ यू कैन सी दिस इज अ इंटीजर हियर। ये अब स्ट्रिंग नहीं है, दिस इज अ इंटीजर नाउ। ठीक है, सो आई जस्ट होप दिस इज क्लियर। आप इसमें कुछ और भी ले सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे मान लो ले लिया एंटर योर नेम, नहीं एंटर अ बूलियन ले लेते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे डाला बूल ए एंड देन लेट्स रन द कोड। मैंने इसमें ट्रू डाल दिया, देन आई प्रेस्ड एंटर एंड इट इज कन्वर्टेड इनसाइड बूल। तो मैंने क्या किया था? मैंने बोला था एंटर अ बूलियन, तो आपने बूलियन में क्या एंटर करा दिया था? ट्रू। ठीक है, अब ये जो ट्रू था, बिकॉज जैसे मैंने बताया कि अगर आप इनपुट लोगे तो ए तो उसको एज अ स्ट्रिंग ही स्टोर करेगा। अगर आपको वो बूलियन में कन्वर्ट करना है, सो फॉर दैट अगेन यू हैव टू यूज द डेटा टाइप कन्वर्शन मेथड। So you have to write the variable name, that is a, equals the thing that you want to convert it inside, that is bool, then inside brackets a again. तो इससे क्या हुआ? आपका जो स्ट्रिंग था वो bool में कन्वर्ट हो गया, and then in the third line you're just checking the type of a, so it should be a bool, and in the output also you can see this is a bool here, right? So I just hope everything till here is clear. तो एक बार रिकैप ले लेते हैं जो भी चीजें हमने डिस्कस की हैं आज। So the very first thing was print. ठीक है, प्रिंट कैसे करा सकते हो? either inside single quotes or inside double quotes, है ना।
दूसरी चीज थी वेरिएबल्स। अच्छा, वेरिएबल्स में मेरे को एक चीज बतानी थी कि अगर आपको मतलब आप जो वेरिएबल नेम्स ले रहे हैं उसके लिए भी कुछ चीजें होती है जो आपको याद रखनी है। जो भी वेरिएबल नेम आपका स्टार्ट होगा वो किसी अल्फाबेट से ही होगा। मतलब 1 इज नॉट योर वेरिएबल नेम, इट कांट बी योर वेरिएबल नेम। 1A कांट बी योर वेरिएबल नेम, A1 कैन बी योर वेरिएबल नेम। मतलब आपको स्टार्ट करना है किसी भी अल्फाबेट से, ठीक है। तो मान लो आपने किसी भी अल्फाबेट से उसको स्टार्ट कर दिया, मान लो ए से कर दिया। इसके बाद आप नंबर्स कुछ भी आप इसके बाद इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे आपने मान लो अंडरस्कोर इंक्लूड कर लिया, A_1, ये चलेगा, ठीक है। लेकिन आपने मान लो ये चीज ले लिया _1, तो ये गलत है, ठीक है। आपने ले लिया 1 दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। सो जस्ट रिमेंबर दिस थिंग कि एक तो जब भी आप कोई भी वेरिएबल नेम लो ना, वो थोड़ा मीनिंगफुल होना चाहिए, ताकि कोई और भी अगर आपके कोड को देखे तो उसको समझ आ जाए। मान लो आप किसी प्लेयर का नाम स्टोर करा रहे हो, ठीक है। कोई भी गेम है, उसमें कोई प्लेयर है, आप उसका नाम स्टोर करा रहे हो, तो उसके लिए जैसे आपने वेरिएबल नेम ले लिया प्लेयर नेम, है ना। एक तो आपने ये ले लिया, एक ए ले लिया, ठीक है। एक कोडर ने इसके अंदर प्लेयर का नाम स्टोर कराया, एक ने इसमें स्टोर कराया। अब जो तीसरा यूजर जब इस चीज को देखेगा तो वो इसको ज्यादा अच्छे से समझ लेगा ना, इसकी बजाय। ले तो आप ये भी सकते हो, पर ये थोड़ा ज्यादा मीनिंगफुल लग रहा है। तो जस्ट टेक केयर ऑफ दिस थिंग कि जब भी वेरिएबल नेम लो उसको थोड़ा सा मीनिंगफुल ले लो। एरर नहीं देगा अगर नहीं लोगे मीनिंगफुल तो भी, बट इट्स अ गुड हैबिट, लाइक इट्स अ गुड प्रैक्टिस। यू कैन टेक द वेरिएबल नेम एज अ मीनिंगफुल नेम। उसके बाद जैसे मैंने बताया, नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते, किसी साइन से स्टार्ट नहीं कर सकते, इन बिटवीन यू कैन यूज इट, है ना। जैसे आपने मान लो ये कर दिया, दिस इज अ वैलिड वेरिएबल नेम, दिस वन इज फाइन। लेकिन ये जो चीज थी ना कि आपने नंबर से ही स्टार्ट कर दिया और आपने नंबर पे ही एंड कर दिया, 1 2 3 आप बोल रहे हो वेरिएबल नेम है, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। अंडरस्कोर ये भी गलत हो जाएगा। सो जस्ट टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स। और उसके अंदर आप कितने भी मतलब नाम आप कितना भी बड़ा ले सकते हो वेरिएबल नेम, बट जस्ट मेक श्योर कि वो कॉन्टिन्यूस है। मतलब जैसे मैंने मान लो बोल दिया ABCEF, आप बोल रहे हो इसमें मैंने 5 स्टोर करा दिया, तो क्योंकि यहाँ पे एक ब्रेक आ गया बीच में, तो इसको आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। एक या तो एक अंडरस्कोर लगा लो, 1 लिख दिया, D लिख दिया, मतलब कुछ भी आप इसके बीच में लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन इसको मेक इट कॉन्टिन्यूस एंड कोई भी स्पेस ना हो बीच में। जस्ट टेक केयर ऑफ दिस थिंग। दूसरी चीज है कि जैसे आप अंडरस्कोर या फिर नंबर नहीं यूज कर सकते, ऐसे आप स्टार्टिंग में ही स्पेस यूज नहीं कर सकते। जैसे आपने मान लो यहां से यू कैन स्टार्ट राइटिंग और आपने यहाँ पे वेरिएबल बना दिया, ये भी एरर दे देगा आपको। यू हैव टू राइट A हियर इक्वल्स एंड देन यू हैव टू राइट द थिंग दैट यू वांट टू, राइट। सो आई जस्ट होप एवरीथिंग टिल हियर इज क्लियर। मतलब वेरिएबल्स का नाम कैसे लेना है ये चीज क्लियर है। तो एक तो हमने प्रिंट देख लिया। प्रिंट के बाद वी हैड सीन अबाउट वेरिएबल्स। वेरिएबल्स को कैसे प्रिंट करोगे, यू हैव टू राइट प्रिंट, देन इनसाइड ब्रैकेट्स यू हैव टू राइट द वेरिएबल नेम, ठीक है। उसके बाद हमने देखा था डेटा टाइप्स। तो हमने आज देखे हैं इंटीजर डेटा टाइप, फ्लोट डेटा टाइप, बूल एंड स्ट्रिंग, राइट। आफ्टर दैट वी हैड सीन द इनपुट फंक्शन। इनपुट फंक्शन कैसे लिखते हैं, इनपुट और इसके बीच में जो भी आपको स्टेटमेंट लिखनी है, जो यूजर मतलब जो आप चाहते हो कि यूजर के पास वो जो स्टेटमेंट अपेयर हो वो आपको इसके अंदर डालिए कोट्स में। अगेन यहाँ पे भी आप सिंगल कोट्स भी यूज कर सकते हो, डबल कोट्स भी यूज कर सकते हो, दैट इज अप टू यू, ठीक है। और इसके अलावा हमने देखा डेटा टाइप कन्वर्जन। वो आप कैसे करते हो डेटा टाइप कन्वर्जन, यू फर्स्ट राइट द वेरिएबल नेम जो भी आपको कन्वर्ट करना है, इक्वल्स जिस डेटा टाइप में कन्वर्ट करना है वो डेटा टाइप लिखना है, देन इनसाइड ब्रैकेट्स अगेन यू हैव टू राइट द वेरिएबल नेम, ठीक है। ऐसे हम कर सकते हैं। तो इसके अलावा हमने एक टाइप फंक्शन भी देखा था। तो टाइप के अंदर आपको अपने वेरिएबल का नाम लिखना था, और ये चीज ऐसे मतलब आप किसी भी वेरिएबल का डेटा टाइप ऐसे चेक कर सकते हैं। सो आई जस्ट होप ऑल दीज कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर कि हम ये सारी चीजें कैसे कर सकते हैं। After the session, what you can do is you can just open a Google Collaboratory. What you can do is just type Google Colab, ठीक है। एक नया टैब खोल के Google Colab उसमें टाइप कर दो। वहां से जाके Google Colab में एंटर करके न्यू नोटबुक पे जाना है।
ठीक है, और ये सेम इंटरफेस वहां पे आ जाएगा। कोड इंसर्ट करना है कोड लिख लो, टेक्स्ट अगर कुछ लिखना है टेक्स्ट सेल इंसर्ट कर लो। अगर कोई कोड या फिर टेक्स्ट सेल डिलीट करना है तो उसके लिए व्हाट यू कैन डू इज, जैसे मान लो मेरे को ये लास्ट वाला डिलीट करना है, तो यू कैन जस्ट गो टू दिस डिलीट एंड डिलीट इट लाइक दिस। ठीक है, अगर ये वाला अगर डिलीट करना है तो इसके लिए गो टू डिलीट हियर एंड देन डिलीट इट एंड सो ऑन। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी कैन वर्क ऑन गूगल कोलैबोरेटरी। सो ये पाइथन के कुछ बहुत ही ज्यादा बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे जो कि आपको आने चाहिए, मतलब मशीन लर्निंग पे जाने से पहले आपके पाइथन के कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, एंड आई जस्ट होप दे आर क्लियर टू यू, राइट। सो इफ यू गाइस हैव एनी क्वेश्चंस आप कमेंट्स में पुट कर सकते हैं इवन आफ्टर द सेशन। ठीक है, आई विल आंसर देम देयर और यू कैन आस्क देम इन द नेक्स्ट सेशन ऑल्सो। सो हफ्ते में 5 दिन आपका ये चलेगा, मंडे टू फ्राइडे कॉन्टिन्यूस, मतलब होंगे वर्कशॉप्स ऑन द सेम टाइम। So till then, yeah, tomorrow we'll be having the next workshop. Till then, bye bye, take care and stay safe.